So, friends, today we'll start unit number 5 and unit number 6 depend on the vector. The name is vector differentiation and the vector integration. Differentiation, derivative and integration is required for the vector. So, for that chapters, units, we need some basic of the vector. So, what is the definition of a vector and scalar? Scalar is in mathematical language, scalar is a line segment having no direction, and vector is again a line segment having a direction like this one. This line segment you can say A and B. This line segment having the A and B, but see what's the here direction I have shown. So this becomes the vector. Vector is a line segment having magnitude and direction, and scalar is a line segment having magnitude only, not the direction. How to represent mathematically? You just say this one as AB, or you can say BA. In this case, both are the same, AB or BA. But in this case, direction plays a very important role, so you can show AB bar. But if you want to write from B to A, means opposite to the direction, so you can also write, but you write minus of BA bar. These notations plays a very important role. So these are the vectors, but this chapter is under the three-dimensional. Suppose this is our three-dimensional x-axis, you can say y and z-axis, and any one point in a space you can denote by the, you can say okay A, then you can represent the x, y, z, any number 2, 3, 4 like this one. In this case, we are joining the any point to the origin. You can say O, and direction is always from the origin to that point A. So this becomes the vector OA bar. So question is, point is there, origin is fixed, direction is fixed from the origin. So we are representing by the OA bar. If it is joined with the origin, then you can represent it also by the small letter A bar. These symbols plays a very important role. जब A bar होगा तो आपको खुद को समझना है कि there is a point A joining with the origin and direction from origin to that point, and you can represent it by this x-axis xi bar because I bar, yj bar and zk bar. So suppose the point is here 2, 3, 4, so you can represent the vector 2i bar plus 3 because of on x-axis we'll assume it is fixed I bar unit vector, j bar unit vector on the y-axis and k bar unit vector on the z-axis. Unit vector matlab its length is 1. What is 1? 1 meter or 1 centimeter? 1 unit is there. So these are called as the unit vectors, I bar, j bar, k bar. They are always along the x-axis, y-axis and z-axis. This is the fixed situation. So अब मान लो कि B point is here, is the supposed to be 3, 4, 5 whatever 3, 4, 5. अगर हम इस साइड अगर माइनस ले तो 3, -4, leave it. What is the point? Suppose I am joining these 2 points and from A to B. So we can write this vector as AB bar, and you know this AB bar is not joining with the origin. So we can write it as OB bar minus OA bar, means we are joining indirectly origin, B bar indirectly origin, and how to find the AB bar? OB bar जो second होता है वो यहाँ पे पहली बार आता है, OB bar minus OA bar, and you can write this as the B bar minus A bar 2. ओरिजिन के साथ होगा तो हम स्मॉल में लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन हम कभी कैपिटल, देखिए ये कभी नहीं लिखना, कैपिटल A bar इज द रॉन्ग. तो आपको एक तो ओरिजिन के साथ होगा तो ही हम स्मॉल में लिखेंगे. दीज आर द नोटेशंस. और आपको पता ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसमें से सब्सट्रैक्शन है, तो ऑपरेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसके बाद अगर मान लो इस ए बार के ऊपर, जैसे हमने आई बार इज फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एज यूनिट वेक्टर, जे बार इज द फिक्स्ड ऑन द वाई एक्सिस एज यूनिट वेक्टर, वैसे मुझे अलॉन्ग द ए बार
Suppose I want to find out the unit vector, so you can write, see I am writing about this one, a cap is the symbol, a cap is the symbol, and it's a bar upon magnitude of a, or you can just write a bar upon a. अगर हम ऐसे लिखेंगे तो भी मैग्नीट्यूड, बार नहीं मतलब मैग्नीट्यूड। और देखिए मुझे ये क्लियर करना है कि अब आपके सामने कोई भी वेक्टर हो, ए बी बार हो, ओ ए बार हो, या कोई भी हो, अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, या यू कैन से ए, आई एम राइटिंग इन द लैंग्वेज मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सोच लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार, या यू कैन से ए बार इक्वल टू, मैग्नीट्यूड निकालते मतलब हम लेंथ निकालते हैं, और ये निकालता है अंडर रूट ऑफ, देखिए अभी हमारा ए बार यहाँ पे है, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ आई, इसे ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट इसलिए कि अगर माइनस हो तो भी आपको प्लस में हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो कैलकुलेशन है अंडर रूट, ये आपको देगा लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू दैट वेक्टर। अब जैसे भी अभी मुझे ए बी बार की लेंथ निकालनी हो, ये तो ओरिजिन के साथ ज्वाइन नहीं हुआ, तो हम उससे भी लिखेंगे ए बी कैप, कैप इंडिकेट्स यूनिट वेक्टर, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिखता हूँ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बी बार। अगर यहाँ पे टी कैप आ गया, टी कैप, तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टी कैप, टी बार। तो ये वर्डिंग, ये नोटेशन, ये सब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बी बार। और ऑब्वियसली ए बी बार अपॉन ए बी मतलब मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन लेंथ विल गिव द यूनिट वेक्टर। और जब हम इसका बाय दिस अगर ए बी कैप का यूनिट निकालेंगे तो ये मिलेगा 1 ही, इसलिए उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट करने हैं। इसके बाद आपको चाहिए वही अपनी यूनिट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब मान लो मैं आपको यहाँ पे दो वेक्टर फिक्स लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। मान लो लेट ए बार इक्वल टू, कोई भी हम लिखेंगे 3i बार प्लस 4j बार माइनस 2k बार लाइक 1, बी बार 2i बार माइनस 3j बार प्लस 4k बार। कोई भी बड़े बड़े नंबर ले सकते हो, प्लस माइनस। सी बार भी हम लिख लेंगे 3i बार माइनस 0j बार, ऐसा कोई भी 0 भी हो सकता है, k बार। तो ये 3 वेक्टर्स हमने ऐसे ही डिफाइन किए हैं, ये हमेशा 3 4 उसके नंबर कोई भी आएगा। मुझे एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और बहुत ही गुड न्यूज़ है इस चैप्टर की, इसमें आपको वेक्टर ऑफ डिवीजन होता ही नहीं। आप ये सिंबल कभी नहीं देखोगे, ए बार अपॉन बी बार। ये सिंबल मतलब जैसे इंटीग्रेशन में डिवीजन नहीं होता, वैसे वेक्टर में भी दो वेक्टर का डिवीजन। अब ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं होता डिवीजन। देखिए वेक्टर मीन्स व्हाट, हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें तो पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे डिवाइड करते हैं, 20/10 हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन वी कांट डिवाइड, सो डिवीजन ऑफ टू वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। तो हमें कौन सा ऑपरेशन देखना है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब देखिए मुझे ए बार प्लस बी बार करना है, तो कितना सिंपल है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी, इसलिए तो पर्पसली। तो आई के कोएफिशिएंट ऐड करो, जे के कोएफिशिएंट कंपेयर करो, के कोएफिशिएंट कंपेयर करो। लेकिन कैसे बनेगा ये, पहली बार लिखता हूँ 3i बार प्लस 4j बार माइनस 2k बार प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, लेकिन आदत डाल दो, क्योंकि ये माइनस होगा तो अंदर हर एक को माइनस करेगा। 2i बार माइनस 3j बार प्लस 4k बार। प्लस ने मल्टीप्लाई करने के बाद तो साइन चेंज नहीं होगा, तो मैं आपको अब इन दोनों के भी एडिशन में दिखाता हूँ। 3i 2i कितना बनेगा, 5i बार, i बार जैसे कि अभी 2x 3x 5x, वैसे 4j बार माइनस 3j बार प्लस j बार माइनस 2k प्लस 4k
प्लस 2k बार, तो ये बनेगा तुम्हारा a बार प्लस b बार। कभी कभी आपको स्केलर के साथ भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, मतलब 2b बार, तो क्या करेंगे अभी a बार की जगह a बार लिखेंगे, 3i बार प्लस 4j बार माइनस 2k बार प्लस 2 इंटू बी बार की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी हमने ऐसे एक एज्यूम की है, आप कोई भी ले सकते हो। अब इस केस में क्या होगा, आपको ये जो 2 है आपका, ये हर एक को मल्टीप्लाई करेगा एंड देन वी आर एडिंग विद द आई जे जे एंड के कोएफिशिएंट। एग्री। अब सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, देखिए ए बार माइनस बी बार होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और आपको पता है ये माइनस आएगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस वाला प्लस होगा, मतलब चेंजिंग द साइन बिकॉज दिस माइनस इज मल्टीप्लाइंग टू द ब्रैकेट। और जब भी बीच में माइनस होगा दोस्तों, तो ब्रैकेट इज ऑलवेज इसेंशियल एंड टू द कैलकुलेशन परफेक्टली। एक भी मिस्टेक हो गई, गलती से हमने -2k बार प्लस 4 -2k बार लिखा, तो भी आगे सब गलत होता है, आपको तो मैथ्स के बारे में पता होगा ही। तो ये होगा एडिशन और सिमिलर टू द सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता, तो -2 सबको मल्टीप्लाई करता, साइन चेंज हो जाते, फिर हम अपना वही एडिशन कर देते। यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आपको वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। हम इस केस में ए बी और बी ए सेम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी बार एंड बी ए आर बार नॉट सेम, ये है अपोजिट बिकॉज डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके बाद ये बेसिक ही चल रहा है अपना, जो 12th में आप लोगों ने सीखा होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए दोस्तों, आप उसे मल्टीप्लिकेशन कहें या कोई अपना प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर की ये खासियत है, ये जो प्रोडक्ट या वेक्टर हम सीख रहे हैं, यहाँ से तो अपना चैप्टर डिफिकल्ट बनते जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 टाइप के प्रोडक्ट देखने हैं। वन इज द डॉट प्रोडक्ट, अनदर वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो नाम से आपको थोड़ा सा। नंबर 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और नंबर 4 ऑब्वियसली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसका और भी अलग अलग नाम है। नाम डॉट प्रोडक्ट, इट इज इंडिकेट बाय द डॉट शुड बी देयर, क्रॉस होना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये दोनों आने के बाद ये दोनों इजी है। अभी डॉट प्रोडक्ट मतलब देखिए, ये तो किसके बीच में होगा, वेक्टर के बीच में, क्योंकि चैप्टर का नाम है। तो देखिए इसे हम प्रेजेंट करेंगे ए बार डॉट बी बार डॉट, इसकी डेफिनेशन है ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो अगर हमें इससे ये फॉर्मूला भी बनता है कि अगर हमें एंगल ही निकालना होगा तो ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। आप तो जानते हो ए बी मैंने पहले ही सीखा है, ये है स्केलर्स, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। कैसे निकालते हैं? अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई उसका स्क्वायर, आई नहीं लिखते हम, कोएफिशिएंट ऑफ जे उसका स्क्वायर। ये भी बहुत सारी जगह जब एंगल की बात होगी तो ये यूज़ करेंगे। अब मुझे बता दीजिए, अगर थीटा 0 है, थीटा 0 मतलब क्या होगा? देर इज नो एंगल, मतलब ए बार बी बार एक दूसरे के ऊपर लाइज ऑन ईच अदर लाइक दिस वन, ये दो है ना, ये दोनों के ऊपर होगा तो एंगल इज नॉट देयर। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर होगा तो cos 0 होगा, तो मतलब क्या बनेगा? ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कब होगा? लाइज ऑन ईच अदर, राइट, मतलब देर इज नो एंगल, cos 0 इज 1। अब मुझे बता दो थीटा 90 होगा, मतलब हमारा एक वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक वाई के ऊपर है, तो एंगल कितना बनेगा? 90। cos 90 कितना? 0, मतलब ए बार डॉट बी बार cos 90 बनता है 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 बनेगी। तो मुझे बता दीजिए, ये डॉट जो प्रोडक्ट है, डॉट क्लियर कर दिखाई देना चाहिए। दो वेक्टर का ऐसा 0 मतलब ए बार परपेंडिकुलर बी बार, या कभी कभी क्वेश्चन में 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब आपको ये दिया जाएगा ऐसे ही। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अब मुझे बता दीजिए कि आई बार डॉट जे बार कितना आएगा?
आई बार डॉट के बार कितना आएगा, जे बार डॉट के बार